different positive and negative plates, the high density positive plate, AGM separators, reinforced polypropylene case. Then we have other type of battery, that is nickel cadmium battery. They are expensive battery which are used nowadays. Then these are different make and models of the batteries which are available in the market. We have Okawa, LiveGuard, Anto, and Luminous. Now, for the battery selection guide for solar and home UPS, the first thing is which type of battery we should use and what should be the capacity of the battery. Then we should what should be the brand of the battery which will be used for solar or UPS system in our homes. Then, as I said, that there are two types of battery. That is, one is lead acid battery and this is deep cycle battery. Okay, the deep cycle battery, it is a tabular battery, or they are also called dry or gel batteries. They are mostly used for the solar PV systems and for the UPS inverters in household in homes. So why we go for deep cycle battery? There are 5 advantages of the deep cycle battery. First is they have a long lifespan. They are fastly charged. They have the charging rate is high, and they have thick plates or tubes, means they have good storage of the charges. Then heavy charge storage capacity, as I said, and they also have a long life. So talking about the tabular battery, they have tubes like structure as compared to their plates in the lead acid battery. That is why they are called tubular batteries. So this is a condition for the this fully 100% fully charged and its specific gravity depending upon what will be the specific gravity of this solution, and then it will resemble the status of the battery, that is charged or it is 75% charged or is it 50% charged, depending upon the specific gravity of the electrolyte solution. Now, regarding the battery selection, firstly, on the basis of the battery size involves the following to calculate the battery capacity. That is what is our daily load, what is our inverter efficiency, wiring efficiency, depth of discharge, how much time it takes, how much hours it takes to completely discharge a battery, and the days of autonomy, means if there is no sunlight is available, how much days the battery will be available to deliver the power to fulfill our needs. Then we have temperature factor also. As a depth of discharge, we can say that this lithium-ion battery, they have highest depth of discharge, almost 85%, and for the lead acid battery it is only 50%. In one example we will do that. Then selecting suitable battery for the inverter size. If we have inverter size up to 100 watts or 1 kilowatt, then we will go use a battery which is having 12 volts of this potential. Then again we have 1 kilowatt to 2 kilowatt, then we will go for 24 volt battery. Then we have over 2000 watts or 2 kilowatts, then we will go for a battery which is sizing about 48 volts. The battery ampere hours, it is defined by the battery capacity watt hour to the battery bank voltage in volts. The battery sizing, as I said, is in AMH. For example, we have 12 volt lithium battery with a capacity of 100 Ah. That means that it can deliver 100 ampere of the current to a 12 volt device for 1 hour. Similarly, if we have 100 ampere battery, it could supply for 4 hours if it is used to supply the current of 25 ampere for 4 hours. Then again, if we have a battery of size 12 volt 50, this means that the battery would work on 12 volt and a capacity of 50 ampere hours. Similarly, there's an example. If I am running a motorboat in Dal Lake, and it draws a 15 ampere at 12 volt, and I have a 12 volt battery with 70 ampere hour. So what is my total time run? How much time the battery will run to take my boat to some place? So when I switch to the other gear, I am increasing the speed of the motorbike or boat. Then how much time it will take to fully discharge the battery, or how much time the energy will be delivered from the battery.
So you can solve it, and if you have, it is just an example, numerical example. Again, in other slides we have other examples. So these are the some advantages and characteristics of the batteries. Characteristics of lead acid battery, characteristics of lithium batteries, characteristics of nickel metal hybrid batteries, and we can see that there is a specific energy per watt per hour per kg, depending upon the size of the battery. So how much the specific energy it can produce. It is for lead acid batteries is only 25 to 35, but you can see about lithium batteries it is 100 to 150 watt hour per kg per size of the battery, and for the lithium, for a nickel metal hybrid we can see that it is 65 to 75 watts per hour per kg. And also the most important is lifetime. You can see we have only for lead acid battery we have 250 to 750 cycles. Then for the lithium ion battery we have almost 1000 life cycles, means it can be charged and recharged up to 1000 times. Its life is almost 1000 cycles. Fully charged, fully discharged again, then go for 1000 times we can use it again and again. For this also is 700 times. There are some advantages. It is relatively low lifetime, but it is low cost. Okay, basically we are using this now. We have shifted to the tabular batteries in this solar PV systems. Also regarding the lithium batteries, it is having high specific energy, long life, but the cost is high, and this is low safety is here. Basically, whenever we have a battery to store the energy, then we need a charge controller. Because unless there is a charge controller, we have to charge the battery, and then battery has to give charge to the other appliances using AC or DC, inverter, or we can see the controller. Then regarding the depth of discharge or life, we have this one graph shows that for the lead acid battery we have 300 to 500. For the gel we have 1100 cycles at 5% withdrawal. Then we have AGM, that is we have 700 to 1000, and the highest is for lithium battery, which is almost 3000 to 5000. These are some advantages and disadvantages. Now, to assess the energy demand for any particular household or for any enterprise, what we have to do, we have to go for the utility bills. What is your annual or monthly electricity bill? Then we have to go for load list. Then we have to go for duty cycle. Suppose this is an example of an household from for 1 year we are using 5592 kilowatt hours per year. 5592 kilowatt per hour, this is the utility bill for 1 year of a household. So on that basis we want to design the electric system, also the battery system, also the inverter system. Which type of system we will going to use. If we suppose we have this type of example, that 5592 kilowatt hours per year it is consumed. Firstly, what we will have to do, we have to, how much you will offset with the solar. Suppose I am going that I will replace the 50% of the जो electricity हमारी यहाँ पे बन रही है या जो consume हो रही है या जो हमारी demand है, मैं कह रहा हूँ कि मैं 50% जो है इसकी electricity जो bill जो है ये half कर दूँगा किससे, solar से. If I will replace whole with, then we have to multiply by 1. Means whole the system will be operated by the solar system. But what I am thinking that कि I will मैं कह रहा हूँ कि 50% ही जो electricity bill है मैं इससे meet out करूँगा. Then we have 5592 multiplied by 0.5. 0.5 क्या है? 50% पावर जो है वो सोलर से आएगा. Then we have 2796 जो है हमारी एनर्जी डिमांड है किलोवाट आवर. ठीक है. इसके बाद मैं क्या करूँगा? Then we have some direct factors. Direct factors क्या होते हैं कि जैसे losses होते हैं. ठीक है. सोलर जो पैनल होते हैं इनमें लॉस होता है. अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी टेम्परेचर बढ़ गया तो इट विल गिव मोर एनर्जी. ऐसा नहीं है. इट इज़ नेगेटिव ऑफ दैट. जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो सोलर एनर्जी जो पैनल की है वो डिक्रीज हो जाएगी. वी विल सी इन एन एग्जांपल हियर. और ये जो सारे जो है जैसे हमारे पास ये मॉड्यूल जो है इसकी रेटिंग है इन्वर्टर ट्रांसफार्मर की, एसी वायरिंग की, जितनी भी शेडिंग इफेक्ट आ रहा है इसका ओवरऑल जो हमने एक सर्वे के हिसाब से देखा कि ये 0.77% है. कितना है?
7, तो इसको इस जो जेनरेट फैक्टर है यानी कि जो लॉस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी सोलर की वजह से हो गई थी 2796, लेकिन हम डिवाइड करेंगे 0.7 से तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ गई, क्योंकि लॉस को हमें मद्देनजर रखना है। तो हमारे कितना बन जाएगा 3631 किलोवाट आवर की हमें एनर्जी की डिमांड है जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द पावर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3631 किलोवाट की हमें जरूरत है, लेकिन यही डिपेंड किस पे करेगा, मेरा डेली सनशाइन आवर्स कितना है, मेरा डेली सनशाइन आवर्स कितना है और एक साल में मेरे कितने सनशाइन आवर्स बनते हैं। ठीक है, तो 4.33 पीक सन आवर्स पर डे मेरे को मिलते हैं हर दिन में, तो 365 दिन में हमारे पास कितने मिलेंगे, 1580 पीक सन आवर्स हमें मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 3631 को डिवाइड करेंगे 1580 से, तो हमारी जो डिमांड है वो है 2.29 किलोवाट, यानी कि 2300 लगभग वाट्स की हमें जरूरत है। ठीक है, इसका सेटअप बनाना है हमें सोलर का। अब आप देखिए, मैंने अब क्या किया, मैंने देखा कि जो हमारे पास पैनल है कोई भी सोलर पैनल की वाटेज है 200, कितनी है 200, मैंने 200 वाट का मैक्सिमम पावर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो वो है 200 वाट। तो 200 वाट से मैंने क्या किया, जो मेरी एनर्जी रिक्वायरमेंट है 2298, ठीक है 2.29 किलोवाट, उसको मैंने क्या किया, जो हमारा पैनल का जो वाटेज है वो है 200, तो इससे मुझे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ पैनल्स मुझे कितने चाहिए सोलर इसको एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसको ऐसे मुझे 11.5 या 11 या 12 ले सकते हैं हम। ठीक है, और जो भी सोलर पैनल है उसमें डाटा होती है, 4 तरह के डाटा होते हैं मेन। एक होता है इलेक्ट्रिकल डाटा। इलेक्ट्रिकल डाटा में हमारे पास है मैक्सिमम पावर क्या है इसका, ऑप्टिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, ऑप्टिमम ऑपरेटिंग करंट क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, ओपन सर्किट करंट है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस टाइप्स ऑफ द जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पैनल्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं दूसरी कंपनियां। ठीक है, वी हैव थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो। अभी बताता हूँ एक एग्जांपल में कि ये हमें कैसे हेल्प है। अब मैं कह रहा था कि जैसे मैंने अभी कहा कि टेम्परेचर पे बहुत डिपेंडेंट है पैनल की एफिशिएंसी। ठीक है, हम कहते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। अब हम ये पता करेंगे कि मिनिमम टेम्परेचर पे हमारी पैनल की जो वाटेज है या वोल्टेज है वो बढ़ती है कि घटती है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसकी वजह से जो वोल्टेज है किसमें, पैनल में, वो हमें वो एनहेंस हो रही है या डिक्रीज हो रही है। मैंने एक एग्जांपल ली है फॉरेन कंट्री की। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ईयर का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर था वो -26.7 था। ठीक है, कोई फॉरेन कंट्री है, तो ये हो गया -27 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर हमने देखा जुलाई 2399 में वो था 41.7 यानी कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस बिना पे हम देखेंगे जो पैनल की एफिशिएंसी है वो कैसे अफेक्ट करती है, और हमें इन्वर्टर या बैटरी को कैसे हमें सेलेक्ट करना है। पहले हम देखेंगे मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज के लिए हमने यही पैनल ले ली जिसकी वाटेज है 200 वाट, और हमने इसका लिया है ओपन सर्किट वोल्टेज, वो कितनी है 27 वोल्ट। कितनी है 27। ओपन सर्किट वोल्ट का मतलब है जो पैनल है ये कितना, अगर इसको लोड लगाएंगे तो ये कितनी वोल्टेज दे सकती है, दैट इज 20, दैट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज। कितनी है ये 27। ठीक है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर जो था वो कितना था -26.5, तो मैंने उसको राउंड अप करके -27 ले लिया। फिर मैंने क्या किया, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन है वो कितनी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो -27 -25 कितना होगा, ये माइनस का ख्याल रखिएगा, तो -25 है कि -52 क्या है, ये है हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, व्हेन वी आर कंसीडरिंग एज द मैक्सिमम वोल्टेज के लिए। ठीक है बेटा, तो इट इज -25। अब देखो -25, इसमें एक मैंने लिया ओपन करंट वोल्टेज और टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिया मैंने यहाँ पे VOC, ओपन करंट वोल्टेज में टेम्परेचर कोएफिशिएंट है -2.79 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये -2.29 होता है, पर जितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा उसके हिसाब से -2 से हमें माइनस करना है। ठीक है, अब आप देखिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, मैंने -52, और यहाँ पे जो टेम्परेचर VOC जो मैंने यहाँ ले लिया -0.29। ठीक है, और इसको मैंने डिवाइड किया किससे 100 से।
इसको मैंने 100 से डिवाइड किया, तो इसमें क्या आ गया, इंटू माइनस 0.0029, यू कैन 0.29 डिवाइड बाई 100 करेगा तो इट विल गेट यू 0.0029। तो ये जो हमारे टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, 0.15, ठीक है। और इसको मैं परसेंटेज में बनाऊंगा तो क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाई 100 तो हो जाएगा 15.08। पता है ये क्या है, ये 15.08 क्या है, इसका मतलब है जो वोल्टेज थी उस टाइम, तो जो यहाँ पे था 27 से ज्यादा इसमें वोल्टेज 1.5% बढ़ जाएगी, ठीक है, 15%, ठीक है, यानी कि 15%। अगर ये यहाँ था 27%, ठीक है, हम क्या मान के चलते हैं 27 जो है 100% थी इसकी, और 50% हो गया, ये हो गया 1.15, समझ गए मेरी बात, 1.15% जो है VOC से बढ़ गया ये, ठीक है। ये इसकी वजह से हो गया मैक्सिमम टेम्परेचर जो कम था इसकी वजह से। और अब ये जो पैनल है ये हमें कितनी वोल्टेज दे रही है, VOC 31.07, ये मैक्सिमम वोल्टेज देगी ये इस टाइम। लेकिन पहले इसका मैक्सिमम कितना था, ये 27 वोल्ट था ये ओपन सर्किट वोल्टेज, लेकिन इसकी वजह से इसमें 1.15 यानी कि 15% हमें इसमें बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द लेस टेम्परेचर। लेकिन वहां पे यहाँ पे टेम्परेचर -27 डिग्री है, लेकिन सनशाइन आवर्स हमारे बराबर है, कितने एवरेज में कितने लिया हमने, 4.55, ठीक है। अब हम यही जो एक्सरसाइज है ये रिपीट करेंगे, किससे, मिनिमम वोल्टेज से। मैंने कहा कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर था उस टाइम वही था 41.7 यानी कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। और इसके लिए अगर हमें मिनिमम के लेने के लिए क्या होता है, ऑप्टिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, वो कितनी है, 22.6 वोल्ट। किसी भी पैनल आप जब नीचे जाएंगे तो पैनल को देख लीजिएगा साइड में, तो ऑप्टिमम ऑपरेटिंग ये है, कम से कम वोल्टेज क्या दे सकती है, ये 22 दे सकती है, ठीक है। और मैक्सिमम क्या दे सकती है, 27, ठीक है। और इसमें हमें टेम्परेचर एक ऑप्शन देना है, दैट इज दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, एट दिस वोल्टेज, वो भी कुछ 0 पॉइंट कुछ है ये, अभी मैं इसमें करता हूँ इसमें, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज प्लस, ठीक है, ये पॉजिटिव था। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना था, -25, ठीक है। प्लस लेना है जो टेम्परेचर हमारा, क्योंकि जो रूफ टॉप होता है, रूफ टॉप में कहीं पे और कुछ मतलब वहाँ पे कुछ ज़्यादा जो है हीट ट्रांसफर जो होती है वो स्लैब से भी हो जाती है, किसकी तरफ, पैनल की तरफ, ठीक है। तो उसका एक फ्रैक्शन लेना होता है, वो है रूफ अमाउंट, दैट इज 35, क्या है, 35 डिग्री। तो इसमें हम 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 52 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये जो 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस है, इसको मल्टीपल करेंगे जो 0.0037 है, यहाँ पे 0.37 डिग्री पर डिग्री, ये जो ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, ये इसके बाद आएगा। तो आई हैव मल्टीप्लाइड इट एंड देन इट इज इक्वल टू -0.1924, यानी कि जो अगर हाई टेम्परेचर पे पैनल को देखेंगे 19% जो है इसकी वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, 19% इसकी वोल्टेज ड्रॉप होती है। अब आप देखेंगे कि हमारा इसके कितना था, 26.7 था इसका वोल्टेज, को यहाँ कितना था 22.6। अब हम यहाँ देखेंगे इसका हाल क्या हो गया। अब आप देखिए ये 52 हो गया, ये हो गया, तो इसमें 19.4%, लेकिन 100% कब देता है ये 22.6, तो यानी कि +81 हो जाता है 100%, लेकिन ये 100% नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या है, 0.81, बाकी तो ज़ाया हो गया 90% इंटू 22.6 जो VM इसका मैक्सिमम वोल्टेज है, तो इस कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 18.25 जो है, इतनी ही वोल्टेज रहेगी, बाकी ज़ाया हो गया। 22.6 था ये, है ना, 22.6 और इतना 81% ही ये एफिशिएंट है इतनी वोल्टेज देने के लिए। तो हमारे पास लॉस हो गया ऑलमोस्ट 4%, ठीक है। तो 18.84 वोल्ट, ठीक है, तो 18.25 ही यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेगी। वहाँ हमारा इंक्रीज हो गया ड्यू टू लो टेम्परेचर, और यहाँ हमारा डिक्रीज हो गया वोल्टेज ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारी हाई वोल्टेज है 300, डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड होगा, ये मल्टीपल नहीं है, डिवाइड है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई
31.7, जैसे हमारे पास वो वोल्टेज बढ़ गई जो मैक्सिमम तो 9.6 पैनल्स को हमें यूज़ करना है या 9 मॉड्यूल्स को, यानी कि 125 अगर 2 वोल्टेज है तो 18.25 जो हमारी मिनिमम आया, अगर 22.6 था लेकिन 18.25 आ गया तो 6.8 मॉड्यूल्स को हमें इस्तेमाल लेना है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और समझाएंगे इसमें कि इसमें क्या है। हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हमारे घर में भी होते हैं। ठीक है, हमारे पास स्मॉल मोटर है, एलईडी लैंप है, फ्लैट स्क्रीन टीवी है या लैपटॉप है, वेंटिलेशन है, एयर कंडीशनर है और रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, हमने कह लिया कि इसका जो क्वांटिटी है 1 है, इसका 10 है और सबका बाकी का 1 है। ठीक है, और हमारे पास पावर जो इसकी रेटिंग है वो है 111 वाट, 30 वाट, 120 वाट, 940, 500। और ये सारा इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें दूसरी स्लाइड में जाना पड़ेगा। जब वी हैव डेली यूज, अगर हम देखेंगे 0.25 आवर्स, 5 आवर्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 24 आवर्स, और ये रेफ्रिजरेशन भी हमारे पास ऑलमोस्ट 24 आवर ही ऑन ही रहता है, हम उसको बंद नहीं करते। ठीक है, अब हम देखेंगे जो एनुअल यूजेज था जो रेफ्रिजरेटर का था, मैंने कहा कि एनुअली हम इसको कितने कर रहे हैं, 640 किलोवाट आवर पर ईयर में करते हैं। तो 640 किलोवाट है तो इसको मल्टीपल करेंगे 1000 से तो वाट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितने डेज हैं साल में, 365, तो ये हो जाएगा 1753 वाट आवर्स पर डे ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे 1753 लिखा था यहाँ पे। तो ओवरऑल कितना बन रहा है इसको, 19,528 किलोवाट्स का बन रहा है। ठीक है, वाट आवर, सॉरी वाट आवर। अब आप देखिए जो भी हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में हमारे पास लॉसेस होते हैं, सिस्टम में लॉसेस है, कोई भी सिस्टम जो है 100% एफिशिएंट नहीं है। पहले हमने क्या करना है, एस्टिमेट सिस्टम लॉसेस सबसे ज्यादा है, क्या है, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, वायरिंग लॉस और कन्वर्जन एफिशिएंसी। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले हमारे पास सोलर पैनल था, सोलर पैनल से हमारे पास ये था, इन्वर्टर था, डीसी करंट आ गई, इन्वर्टर आ गई, उसके एसी बना दिया, एसी से हमारे यूटिलिटी ग्रिड में आ गया या होम्स में आ गया हमारे पास ये जो बिजली है। ठीक है, या उसके बाद अगर हम वहाँ इन्वर्टर से डायरेक्ट ले जाएंगे, कहाँ पे रखेंगे, बैटरी में स्टोर करेंगे। अब बैटरी को क्या करना है, बिजली को वापस करना है, क्योंकि अगर सन नहीं है तो बिजली पावर कहाँ से आएगा, बैटरी से आएगा। तो बैटरी को क्या करना है, ये डीसी करंट देगा, फिर ये इन्वर्टर में देगा, इन्वर्टर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा एसी में, एसी फिर दोबारा यूटिलिटी में ग्रिड में जाएगा या हमारे घरों में इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे लॉस है, बैटरी को चार्ज करने पे भी लॉस है, बैटरी को डिस्चार्ज करने में भी लॉस है। ठीक है, और हमारे पास जो वायरिंग है उसका भी लॉस है। ठीक है, और हमारे पास जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है, चाहे इन्वर्टर की, इन्वर्टर जो है हमेशा डीसी को 100% एसी में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करता है, उसमें लॉस होते हैं, अप टू हमारे पास 92 या 90% जो हमारा इन्वर्टर है उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे इसमें होता क्या है। अगर देखेंगे राउंड ट्रिप एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास लेड एसिड बैटरी है तो इसमें अगर 100 वाट इसमें आ रहा है चार्जिंग के लिए, ठीक है, ये वापस कितना दे रहा है, 85 वाट ही देगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास लिथियम आयन बैटरी है, अगर 100 वाट दे रहे हैं हम इसको, ये कितना देगा हमें, 95 वाट देगा हमें वापस। तो दिस इज द राउंड ट्रिप एफिशिएंसी जो है, तो इसमें ज्यादा लॉस है लेड एसिड बैटरी में एज कम्पेयर टू द लिथियम आयन बैटरी में। अब हम दूसरी बात करेंगे वायरिंग लॉस का। ठीक है, जितनी ज्यादा अगर सोलर पैनल कहीं पे दूर है, जितने ज्यादा वायर लगाएंगे हम उतनी हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। उसके लिए हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है, और जितनी लंबी वायरिंग होगी उतनी वोल्टेज ड्रॉप होगी। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, दो टू टाइम में जो लेंथ है वो डिपेंड करती है लॉस पे। ठीक है, तो हमारी वायरिंग जो एफिशिएंसी है वो कितना लेते हैं, 97%। अब हमारे पास है कन्वर्जन एफिशिएंसी। कन्वर्जन एफिशिएंसी में हमारे पास क्या है, डीसी को एसी में लाना। ठीक है, तो इसमें हमारी जो इन्वर्टर की एफिशिएंसी कितनी है, वो 92 से लेके 94% है, लेकिन हम क्या लेते हैं, लोअर साइड में लेते हैं, दैट इज 92%। ठीक है, अब हम ओवरऑल अगर हम सिस्टम की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हमारे पास 0.95 है ओवर राउंड ऑफ एफिशिएंसी, हमने मैक्सिमम ली किसकी, लिथियम आयन बैटरी की। ठीक है, फिर है वायरिंग लॉस है 0.97। ठीक है, हमारे पास है कन्वर्जन एफिशिएंसी कितनी है इन्वर्टर की, 92। तो ओवरऑल जो हमारे लोड सब सिस्टम एफिशिएंसी है वो कितनी है, 85% है। अगर हम करेंगे तो बाकी 15% जो है हमारे लॉस में जाता है।
ऐसे मैंने कहा कि जैसे हमारे पास दो पैनल है 12 वोल्ट की, यहाँ पे ये इन्वर्टर है या चार्जर है, तो ये 24 वोल्ट को अगर हम पहले 12 वोल्ट ही लेंगे इन्वर्टर से, इसमें चार्जिंग 24 वोल्ट को नहीं होगी जब तक हम पैनल को इसके सर्ज के बराबर नहीं लाएंगे। या हमारे पास ऐसा कन्वर्टर होना चाहिए, ऐसा इन्वर्टर होना चाहिए। क्या होता है कि बैटरी जो है कंटिन्यूसली 3 दिन हमें पावर सप्लाई करेगी। अगर ये सोलर से कोई एनर्जी नहीं बना रही है, लेकिन तब भी 3 दिन के लिए हमें ये पावर दे सकती है। ये हमें क्या करना है, कैलेंडर में देखना है कि भाई हमारे कब है यहाँ पे जो है ऑफ, सन ऑफ कब है, ठीक है ना, वी आर नॉट गेटिंग सनशाइन आवर्स, ठीक है। तो उसमें ये हमारे पास ये प्रोविजन है उसमें, ठीक है। दूसरा हमारे पास है थर्मल लॉसेस, ठीक है। तो थर्मल लॉस में हमने ऑलमोस्ट 1.19 हम लेते हैं, इसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। थर्मल लॉसेस जितने भी टेम्परेचर की वजह से थर्मल लॉस होते हैं तो ये लेते हैं हम। देन वी हैव आल्सो टिपिकल साइकिल लाइफ वर्सेस द डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप देखेंगे कि नंबर ऑफ जो साइकिल्स हैं, ठीक है, जितना डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होगी उतनी इसकी लाइफ जो है वो कम हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा लेड बैटरी की कितनी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितनी है 50%, और इसकी कितनी है लिथियम आयन की 85%। 85% हम बैटरी को इस्तेमाल करते हैं, बाकी 15% का चार्ज का रहेगा ना, ये दोबारा रिगेन कर सकते हैं रिचार्ज करके दोबारा। लेकिन एक बार 50 चला गया इसके बाद ये पूरी डेड हो जाती है, समझे। तो इसके ज़्यादा हमें इसको ये नहीं करना है, डिस्चार्ज नहीं करना है। अब बिलो 50% डिस्चार्ज करेंगे तो ये अब हमारी जो करंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करेगी। अब हमने, ठीक है, ये एग्जांपल हम सिलेक्शन ऑफ बैटरी फॉर, ये सिंपल हमने एग्जांपल रखी है ताकि, लेकिन यू हैव टू डू इट, ठीक है, यू हैव टू डू इट। आप ये खोलिए, प्रैक्टिकली आप इसको करना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक घर है, ठीक है, एक घर है, उसमें आप देखिए उसमें 2 फैन चल रहे हैं। आपने किए एग्जांपल किए मैंने, हाँ। हमने क्या करना है, 300 वाट का जो सोलर पीवी सिस्टम है उसको डिजाइन करना है। बैटरी क्या लगेगी, पैनल क्या लगेगा, इन्वर्टर क्या लगेगा, ठीक है बेटा। सबसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एग्जांपल है कि एक घर में 2 फैन हैं जो कितने वाट के हैं, 80 वाट के। तो ये कितने कितना हो गया इसका 160 वाट। 2 एनर्जी सेवर है जिसकी 50 वाट की ये जो है वाटेज है, और ये है 50 वाट हो जाएगा 250, ये इट विल बी 100 है ना, it will be 100, ठीक है। 1 ट्यूबलाइट 1 into 40, ठीक है। Energy it is coming on the solar panels, then it is giving a DC energy, then we have charge controller. The charge controller will give the batteries, or we can directly use into DC appliances. If we have to convert a DC into the AC for the AC appliances, then we have to go for the inverter, ठीक है बेटा। तो हमारे पास लोड क्या है, हमारे पास 300 वाट्स का लोड है एक घर में, ठीक है। तो हमें यूपीएस इन्वर्टर किस साइज का चाहिए, और हमें बैटरी कितनी एम्पियर आवर की चाहिए, और हमें सोलर प्लेट्स कितने चाहिए, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर हमारे पास लोड है 300 वाट का, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड है, अगर 300 वाट का हमारे पास लोड है तो वी विल गो फॉर ए इन्वर्टर विच इज 500 वाट और 1000 वाट और 800 वाट। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हम इसमें लोड बढ़ा सकते हैं। दूसरे कमरे में फैन लगा दिया, दूसरे कमरे में अब कुछ और चीज लगा, तो वी हैव टू टेक द प्रोविजन, वी हैव टू टेक द प्रोविजन फॉर दैट। तो हमने क्या करना है, अगर यूपीएस जो है ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो 300 वाट अगर हमारी लोड है तो वी में यूज 500 और 1000 वाट इन्वर्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर की डिमांड क्या होगी, ठीक है। अब हम बैटरी साइज के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पता है पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है बेटा। तो 300 हमारे पास वाटेज है इनटू वोल्ट कितनी बैटरी की 12 वोल्ट, और करंट चाहिए हमें, करंट क्या होगा, तो करंट हमें बैटरी कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 12, तो कितना हो जाएगा 25 एम्पियर करंट की जरूरत पड़ेगी हमें, जो बैटरी देगी हमें, ठीक है। और जो बैटरी साइज है, अब बैटरी साइज क्या लेंगे, टोटल लोड कितना है, बैकअप टाइम इन आवर्स, कितने वो ऑटोनोमिक पीरियड, बैकअप टाइम इन आवर्स कितने घंटे ये चल सकती है बिना सोलर के, डिवाइड बाई बैटरी वोल्टेज, ठीक है। 300 वाट का है, हमने देखा कि 8 घंटे हमें बैटरी बैकअप देनी चाहिए, कितने 8 घंटे नहीं, जैसे 4 घंटे देती है ऑलमोस्ट, ठीक है, हमने हायर साइड में रख दिया 8 घंटे।
डिवाइड बाई कितनी वोल्टेज है इसकी, 12 वोल्ट, तो कितना हो गया 200 एम्पियर एच की बैटरी चाहिए हमें, कितनी 200 एम्पियर एच की, यानी कि 200 एम्पियर देनी चाहिए 1 घंटे में, ठीक है। नाउ बैटरी चार्जिंग करंट, बैटरी तो खुद देगी, पहले डीसी से लिया, लेकिन इसको तो चार्ज करना पड़ेगा ना। अब 8 घंटे इसने हमें पावर दे दिया, करंट दे दी हमने, वोल्टेज दे, जो भी दिया हमने, इसके बाद हमें इसको बैटरी को क्या करना है, बैटरी को चार्ज करना है। तो चार्जिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा याद रखिए, बैटरी चार्जिंग करना होती है 1/10 ऑफ दिस बैटरी रेटिंग, कितनी हिट मेथड है इसका, 1/10 ऑफ दिस बैटरी, अगर कितनी है ये 200 एम्पियर आवर, डिवाइड पे क्या करेंगे 10, यानी कि हमें चार्जिंग, अगर ये है बैटरी 12 वोल्ट की, ये दे रही है हमें 25 एम्पियर, तो 20 एम्पियर की हमें इसको करंट देनी है, किसके लिए, चार्जिंग के लिए, ठीक है, समझ आ रहा है, 20 एम्पियर की करंट हमें देनी है इसको चार्जिंग के लिए। देयरफॉर सोलर प्लेट क्या चाहिए हमें, सोलर प्लेट हमें क्या देगा, पहला देगा हमें कि जो लोड है, लोड में हमें कितनी करंट चाहिए, और दूसरा हमें बैटरी को कितनी करंट से हमें चार्ज करना है, लोड को कितनी करंट लग रही है हमें 25 एम्पियर, और बैटरी को, खुद बैटरी को चार्ज करने के लिए कितनी लग रही है हमारे 20 एम्पियर, तो 25 एम्पियर फॉर रनिंग द लोड प्लस 20 एम्पियर फॉर द चार्जिंग द बैटरी, ठीक है। तो टोटल करंट, सोलर करंट कितनी होनी चाहिए, 45 एम्पियर की हमें करंट की जरूरत है, यानी कि पैनल्स, इतनी पैनल्स हमें चाहिए। एक तो हमें वो कितना देगी, 300 वाट की जो हमारी रिक्वायरमेंट है करंट, यानी कि 25 एम्पियर उसको चलाए, और 20 एम्पियर जो है इसको बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो देयरफॉर टोटल सोलर करंट विल बी 45 एम्पियर। तो नंबर ऑफ सोलर प्लेट्स के लिए क्या चाहिए हमें, सोलर प्लेट्स पावर क्या है V × I, ये सेम फार्मूला यहाँ पे भी है, और ऑलमोस्ट जो है एक पैनल जो है, अगर हम 150 वाट का लेंगे, वो कितना देगी हमें 14 वोल्ट देगी, 14 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 45 एम्पियर, 45 एम्पियर की जरूरत है, तो हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 630 वाट्स की पैनल चाहिए हमें, एक नहीं होगी ये, 2-3 पैनल होगी या 4 होगी, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ सोलर पैनल्स व्हिच विल बी रिक्वायर्ड विल बी 630 डिवाइडेड बाय 150 वॉट एग्जैक्टली वॉटेज ऑफ सोलर पैनल, जो हमारे पास यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक है, तो इसमें क्या है 150 वाट्स, तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ सोलर पैनल्स विल बी रिक्वायर्ड देयर इज 4.2 पैनल्स, और वी कैन से 4 पैनल्स, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द सिस्टम, ठीक है, बैटरी कैसे लेंगे हम। अब हम इसका जो प्रैक्टिकल है वो नीचे करेंगे, बैटरी को चार्जिंग में कैसे देखते हैं, चार्ज में कैसे लगाते हैं, बैटरी किसमें क्या है, ठीक है। थैंक यू।